Today, in the subject of the project management, in the unit third, project selection, we have completed in the last chapter. Various models have been seen in the last chapter. Now, multiple attribute decision making problem is explained here. Decision, no matter made by a group or individual, involves several conflicting objectives. कोई भी डिसीजन जो है सेवरल कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव को शामिल करता है. The real world problem have to be solved optimally according to the some criteria. A decision maker have to be go for the optimal solution, ideal solution. Decision maker is the study of identifying and choosing alternatives to find the best good optimal solution based on factors considering the decision making expectation. The decision environment is collection of the information, alternatives, attributes, parameters, values, preferences available at the time when the decision should be made, with multiplicity criteria of the set for the judging the alternative. Decision making is difficult point, and multi-criteria decision making methods gained a ground due to the need for to have a formalized method to assist decision making in situation in multiple criteria. मल्टीपल क्राइटेरिया में मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड जो है वो आपको सबसे फिट बैठता है. मल्टीपल एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग मेथड्स आर डिजाइन्ड फॉर सेलेक्टिंग discrete alternatives and in addressing complex problem featuring high uncertainty, conflicting objectives, different forms of data and information, multi-interest and perspective, and account for the complex for the evolving biophysical and socio-economical systems. Today, the decision makers has an array of decision making methods like simple additive Bayesian, weighted product method, analytical hierarchy process, analytical network process, TOPSIS, graph theoretical approach, and ELECTRA. है ना? The decision making process usually include the mainly 5 steps. ये 5 स्टेप आपको इन्वॉल्व करते हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. पहला तो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा है असाइनिंग क्राइटेरिया वेट्स, तीसरा है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तीसरा है सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मेथड, एंड पांचवा है रैंकिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स. डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, असाइनिंग द क्राइटेरिया वेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ द मैट्रिक्स, selection of the appropriate method, and ranking of the alternative. In this chapter, the basic feature of the methodology are the MADM approach briefed here. In the simple additive weighting, simple additive weighting आपको दिखाया गया है. Method is also called weighted sum method, and simple additive is the simplest form of the multi-criteria method. इसमें आपको इस मेथड में वेट असाइन किया जाता है. वेट असाइन WG रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द क्राइटेरिया, MIJ रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ द क्राइटेरिया, एंड M रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द क्राइटेरिया. ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है सिंपल एडिटिव मेथड का. इन दिस मेथड ईच एट्रीब्यूट गिवन ए वेट, देन द सम ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1. Each alternative assessed with regard to the every attitude, the overall composite score of the alternative with M criteria is given by this formula. Pi j power 1 add to Wj Mij divided by M 3.1. Wj represents the weight of the criteria, Mij represents the measure of the criteria, and M represents the number of the criteria. So equation 3.1 is applied when decision criteria is expressed in identical units of the measure. However, if all the elements of the decision table are normalized, the performance score is computed by the equation 2. है ना? P1 j equal to 1, Wj Mij normalized divided by M. ये आपको क्राइटेरिया आपको आता है. Where Mj represents the normalized value of the Mij. The attributes of the criteria can be beneficial or non-beneficial. The normalized value of the objective attitude for a
beneficial attributes are calculated by MIJK, where MIJK is the measure of the ability attribute for the kth alternative. MIJJ is the highest measure of the attributes out of all the alternatives. The normalized value for the non-beneficial attributes are calculated by this formula. In SAVE, the alternative with the highest value of PI is considered as the best alternative. Strength, SO offers the ease of use for the calculation. The normalized data allow for comparison across many different criteria. It has the ability to compensate among criteria. It does not require complex computer programs. Weaknesses क्या क्या है? Limitation of SAW include larger is always better or smaller is always better. There is no flexibility to state which criteria should be larger or smaller to achieve better performance. It ignores the fuzziness of the judgment in decision-making process. The result may not be logical to reflect the real situation. Weighted product method में, in this method, the weights are assigned to the attributes to each alternative with regard to the every attribute. The overall performance score of an alternative with M criteria is given by this formula. J equal to 1 Mij normalized Wj. Wj represents the weight of the criteria, M represents the number of criteria, and Mij represents the normalized represent value of the Mij. है ना? The attributes of the criteria can be beneficial or non-beneficial. The normalized value of the objectives attributes for the different beneficial attributes are shown here, and Mij is the highest measure of the attributes out of all the alternatives. The normalized value of the non-beneficial attributes are calculated by this formula. The major drawback in this method is that it overall values extremes leading to the undesirable results because it considerably disfavors the final evaluation of any alternative which relative to the criteria is formed average. Analytic hierarchy process, AHP. AHP is one of the most widely used MADM technique in decision making that involves structuring multiple conflicting criteria into hierarchy, analyzing the relative importance of the criteria, comparing alternatives for each criterion, and synthesize the overall ranking of the alternative. This approach was originally developed by the SETI 1980. The AHP provides a means of decomposing a problem into hierarchy of the subproblem, which can be more comprehended and subjectively evaluated. The subjective evaluations are converted into numerical values, are processed to rank each alternative on a numerical scale. है ना? तो AHP का जो मेथोडोलॉजी है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है. The methodology of the AHP is explained in the following steps. Step 1, determine the objective and evaluation of the attributes. ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कीजिए, एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कीजिए. द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू हायरार्की ऑफ द गोल, criteria, sub-criteria, and alternatives, which is fundamental in the AHP process. The relation between elements of one level with other levels is indicated by the hierarchy. As such, every element is connected to the every other, at least in an indirect manner. The top of the hierarchy is goal or objective of the problem being analyzed. The nodes are the alternatives that two are to be compared. The immediate levels are criteria and sub-criteria. The powerful feature of the AHP that comparing each element at each level, a decision maker has just to compare with respect to the conclusion of the lower level elements of the upper level element. The generic hierarchy structure of the figure is shown follow. ये आपको AHP स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया गया है. पहला गोल क्या है, गोल का डिसीजन होगा. गोल के क्राइटेरिया कितने हैं वो क्राइटेरिया डिसाइड किया, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3 डिसाइड किया. उसके बाद सब क्राइटेरिया 1 to L डिसाइड किया, सब क्राइटेरिया 1 to M डिसाइड किया, सब क्राइटेरिया P to
P1 से P1 तक डिसाइड किया, फिर अल्टरनेटिव डिसाइड किया, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, और सारे अल्टरनेटिव के इसको जो है जज किया, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल दिया। यही आपको जनरल एएचपी का जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। पहले गोल को डिसाइड किया, फिर क्राइटेरियन को डिसाइड किया, क्राइटेरियन 2, क्राइटेरियन 3, फिर सब क्राइटेरियन को डिसाइड किया, सब क्राइटेरियन 1, सब क्राइटेरियन 2, सब क्राइटेरियन n, फिर उसका अल्टरनेटिव डिसाइड किया और बेस्ड अल्टरनेटिव को निकाल लिया। इसी को एएचपी का मेथोडोलॉजी बोलते हैं, है ना। स्टेप 2, determine the relative importance of attribute criteria. Step 2.1, a pairwise comparison matrix is constructed using a scale of the relative importance as shown in the table 1. The pairwise comparison matrix is a square matrix and diagonal elements of the matrix are as follow. Scale for the relative importance is given. इक्वल के लिए 1 देते हैं, मार्जिनली स्ट्रॉन्ग के लिए 3 देते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए 5 देते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग के लिए 7 देते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग के लिए 9 देते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्ट द फजी इनपुट 2, 4, 6, 8 देते हैं। रिफ्लेक्टिंग नो डोमिनेंस कंपेयर्ड विद द फर्स्ट रेसिप्रोकल्स देते हैं। तो ये आपको स्केल्स ऑफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस वो आपको बताया हुआ है। तो पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स ऑफ द एम एट्रीब्यूट्स ए mx1 comparative importance of the with respect to matrix aij where j equal to aij, ये आपको बन गया पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स, है ना। 1, 1, 1 आपका पूरा डायगोनल में है, A21 है, यहाँ पे A12 इसका रेसिप्रोकल रहेगा, A13 रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा, A32 रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा, AM1 रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा, और AM2 रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा, AM3 रहेगा उसका रेसिप्रोकल रहेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है aij denotes the comparative importance of the attribute I with respect to j in matrix aij equal to 1 where I equal to j and aj equal to 1 by aij, and the आपको नॉर्मलाइज वेट wj फॉर इच क्राइटेरिया आपको यहां से निकल जाएगा, gmj है ना, gmj आपको निकल जाएगा। फिर कैलकुलेट द मैट्रिसेस A3, A4, A2 ऐसे निकल जाएगा, A1 आपको ऐसे निकल जाएगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम आइजन वैल्यू डेल्टा मैक्स which is the average of the matrix A4. Calculate the consistency index CIA, lambda max minus m minus 1. It is to be noted that the smaller value of the CIA, the smaller is the derivation of the consistency. Obtain the random index for the number of the alternatives is shown in the table 3.2. Attributes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Random index 0, 0.5, 0.90, 1.2, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45, 1.49, 1.51, 1.48. Calculate the constituency ratio CR. CR equal to CR by CI by RI. CR of the 0.1 considered acceptable, है ना। Ascertain. Step 3. Ascertain how well each alternative serve each attribute. If there are a m number of attributes and number of alternatives, then there will be m number of n into n matrices of the judgment. Obtain the overall or composite performance scores for alternatives by multiplying the relative normalized weight Wj of each attribute with its corresponding normalized weight value for each alternative, summing for the attributes for the each alternative. Also, the ASP method can be used for assigning the value of the relative importance to the attributes in the graph theory matrix approach. ASP is an analytic structure the problem as a hierarchy and defines a process for decision making. ASP helps in structuring the complexity, measurement and synthesis of the ranking and so on. Used in the domains involving decisions in which choice prioritization for the forecasting is needed. The results produced by the ASP are in agreement with the perception and expectation.
ASP uses both subjective and objective evaluation measures. However, the basis in decision making is reduced. ASP support suggests geometric mean method to determine the relative normalized weight of the attribute maximum given value, which reduces the inconsistency of the judgment. Weakness आपको दिया हुआ है. The rating of the alternatives obtained by ASP may change if a new alternative is needed. Rank reversal. The inherent uncertainty and imprecision associated with the certain environment could not be adequately accommodated by the ASP. Without losing some degree of the accuracy, it is difficult to subjectively scale a concrete qualitative number to enable the pairwise comparison. है ना. फिर उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको निकालना है. सो सेंसिटिविटी एनालिसिस वो निकाल सकते हैं. तो यही आपको मल्टी-वैल्यू डिसीजन मेकिंग मेथड आपको यही है. Sensitivity analysis is considered as a post-optimality step which is done after the optimal decision is determined. Better decision can be made if one can determine how much criteria each criterion is. Sensitivity analysis enables the decision maker to determine the most critical criterion and the most critical measures. ये करता है वो. Let PI be the I power 1 to M represent the final preference of the alternative AI. When all decision criteria are considered, the best alternative is one which corresponds to the PI. In determining the most critical criterion, let delta K, Ij, 1 equal to less than I less than J and less than N, 1 less than K and K less than N denote the maximum change in the current weight Wk of the criterion Ck. Such the ranking alternatives of AI and AAG will be reversed. Delta Kij equal to Kij into 100 by Wk for any 1 IJM and 1 K less than N, where WKJJ expresses the change in the relative terms. ये आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको निकालता है. तो ये आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग प्रोसेस आपको यही था, है ना. मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग. इसी को आज जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग को मेथड को, ये लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट सेकंड का. इसको आप जो है क्लियर कर देंगे, आपका यूनिट 2 आपका खत्म हो जाएगा. ये मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग. Decisions, no matter by a group, made by a group or an individual, involve several conflicting objectives. The real world problems have to be solved optimally according to criteria by the decision makers for optimal ideal solution. Decision making is the study of identifying and choosing alternatives to find the best good optimal solution based on the factors and considering the decision making expectation. सर हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है MADM, ये वही है क्या, मल्टी एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग? हाँ MADM अप्रोच वही है मल्टी एट्रीब्यूट MADM अप्रोच जो आपको लास्ट में लिखा हुआ है ना. बस वही है. MADM अप्रोच वही है आपका पेयर वाइज कंपैरिजन जो दिया रखा है. और सर ये लिखा है प्रैग्मेटिक पेयर वाइज, ये क्या है सर प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर? हाँ, प्रैग्मेटिक वगैरह जो लिखा है ना, तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के कई मॉडल मैंने आपको कल बताए थे ना. उसमें न्यूमेरिक मॉडल, नॉन न्यूमेरिक मॉडल, तो उसमें वो कवर हो जाता है प्रैग्मेटिक के अंदर. न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक जो आपने बताया था. हाँ, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक मॉडल है. उसमें सारे आपको प्रैग्मेटिक, आपको पेयर वाइज वो सारे आपके आ जाते हैं. MADM अप्रोच है ये. आपको MADM अप्रोच में अंदर ही आपको वेटेड मेथड बताया जा रहा है और फिर ASP बताया जा रहा है ना. ये MADM के अप्रोच के अंदर ही है. प्रोजेक्ट सिलेक्शन के कई मॉडल जो है कल मैंने आपको डील किया था. ये तो उसमें आपको ये MADM अप्रोच है.
है ना। और फिर ये ये पेयर वाइज सर, पेयर वाइज? हाँ, पेयर वाइज वो एएसपी है, पेयर वाइज कंपेरिजन एएसपी इलेक्ट्रिकल। ये ठंडा पानी मत दो, है ना। एएचपी क्या सर? एएचपी क्या सर जो आप बोल रहे इलेक्ट्रिकल हायर की प्रोसेस। हैं? ये पेयर वाइज है सर ये? हाँ, पेयर वाइज कंपेरिजन है इसमें, है ना, पेयर वाइज कंपेरिजन है। और एक्चुअली होता क्या है ना सर, जो आप जो पढ़ा रहे हो ना जिस नोट से, हाँ, उसके जो टर्म्स है ना वो हमारे सिलेबस के टर्म से मैच नहीं करते। तो जब आप नोट्स भेजते हो ना तो हमें समझ में नहीं आता कि सिलेबस में प्रैग्मेटिक लिखा है तो आपके नोट्स में प्रैग्मेटिक वर्ड है कहाँ। ये चीज हो जाता है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा ना, या pragmatic तो आप मतलब रीनेम कर दिया करो, हम्म जैसे आपने इस नोट्स में आपने रीनेम किया है ना सर ऊपर मल्टी एटीट्यूड, इसी तरह से ना आप जो भी नोट्स में जो भी टॉपिक इंक्लूड हो, क्योंकि आप यूनिट वाइज तो भेजते नहीं हो सर नोट्स। आपकी एक पीडीएफ में आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं, एक टॉपिक या 3 टॉपिक कवर होते हैं, तो उन टॉपिक के नाम लिख दिया करो उस पीडीएफ का रीनेम करके कि उसमें इसमें ये 3 चीजें हैं। सारे में नाम लिखा हुआ है आपका, जितने भी उसमें आपको गया हुआ है ना, सब में नाम लिखा हुआ है ठीक है। प्रैग्मेटिक। और ये पेयर वाइज, ये ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ही मॉडल हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ही जी मॉडल जी हैं। जी। तो जितने मॉडल हैं वो मैंने कल आपको बता दिया था, जितने तरह के जो मॉडल होते हैं ना प्रोजेक्ट सिलेक्शन में। तो जी प्रैग्मेटिक, पेयर वाइज ये स्पेशल दिया हुआ है, एमएडीएम अप्रोच ये अलग से दिया हुआ है। पेयर वाइज और प्रैग्मेटिक जो है ना, प्रैग्मेटिक का मतलब जितने भी जो आपको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरिंग जो आपका जो मॉडल था ना प्रैग्मेटिक, वो वही है, जी। मैंने आपको बताया हुआ था। तो ऑलमोस्ट सभी का जो है वो नाम वाइज तो आपको दिया ही गया है, सबको एक एक करके, जैसे प्रोजेक्ट अप्राइजल में जितने एनालिसिस बताए गए हैं ना, सबके आपके एक एक करके एनालिसिस पर ही बताए गए हैं। तो ये आपको आपको एमएडीएम अप्रोच किया है, तो वही आपको ये एमएडीएम अप्रोच को वो समझा रहा है ये, है ना। और पेयर अच्छा वाइज आपको जो कंपेरिजन, एएसपी को पेयर वाइज कंपेरिजन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये सिंपल एडिटिव मॉडल है ना। सिंपल एडिटिव मॉडल मैंने बता दिया, वेटेड प्रोडक्ट मेथड बता दिया आपको, ये एमएडीएम ये अप्रोच। ये ये जो मेथड्स हैं ये किसके अंदर आ रही है? ये पेयर वाइज के अंदर आ रहे हैं या एमएडीएम के अंदर आ रहे हैं? ये एमएडीएम के अंदर है, एमएडीएम के अच्छा, अंदर तो है। पेयर वाइज के अंदर कौन सा टॉपिक आता है? एएचपी आता है कैसे मतलब? एएसपी आपका पेयर वाइज कंपेरिजन है, हायरकी ऑफ द गोल, ये इसमें कंपेरिजन करते हैं ना तो एक दूसरे का। तो पेयर वाइज जो कंपेरिजन कह रहा है ना, सब क्राइटेरिया क्राइटेरिया को, यहाँ हम्म। पर ये कंपेरिजन है, एक दूसरे का कंपेरिजन है ना। रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द एट्रीब्यूट निकालते हैं, पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ यही तो लिखा है ना, पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स, है ना। हम्म। पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हैं इसको, इस मैट्रिक्स को पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसको पेयर वाइज कंपेरिजन अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सर द पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स विद एन हम्म एट्रीब्यूट। इसमें पेयर वाइज ही कंपेरिजन करते हैं, इसीलिए एएचपी को पेयर वाइज कंपेरिजन अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पे तो इसको अलग से लिख दिया है, ये एएचपी ही है ना, एएचपी ही है ये। तो पेयर वाइज कंपेरिजन अप्रोच जो है ये आपको लिखा हुआ है ये। इसमें नॉर्मलाइज्ड वेट डब्ल्यू निकाल लेते हैं, और ये कैलकुलेट करके ये 5 स्टेप में निकाल लेते हैं, है ना। ये स्टेप आपको बताया गया है। और सर ये भेज दिया सर आपने प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर टेक्निकल वाला, इकोलॉजिकल और फाइनेंशियल वाला? ये सारे भेज तो दिया, कंप्लीट तो कर दिया। कर दिया ना सर आपने? हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया, तो पूरा एक एक करके तो हो गया। ठीक है सर। फाइनेंशियल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्निकल, मार्केट एनालिसिस, ये सारा एक एक करके हो गया। अब आपका इसमें कोई टॉपिक बचा नहीं है, कंप्लीट हो गया है आपका सिलेबस। कल मैं प्रोजेक्ट ठीक है कंप्लीशन सर। बताऊंगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में थोड़ा सा कम टाइम दिया हुआ था, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन आपको बताऊंगा, है ना। सर इसके ना कुछ क्वेश्चन भी आपको ना डिस्कस करने पड़ेंगे सर हमसे।
क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना सर, है तो थ्योरी सब्जेक्ट, और कुछ दो यूनिट आपके न्यूमेरिकल है, जैसे सीपीएम और पर्ट के, हाँ हाँ ठीक है, हाँ और हाँ मॉनिटरिंग और कंट्रोल वाला वो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। बाकी जो यूनिट है वो आपका है थ्योरी। हाँ इसमें हाँ होता क्या है, हम थ्योरी पढ़ तो लेते हैं, पर जो क्वेश्चन जिस वे में आते हैं ना सर, उस क्वेश्चन को हम समझ में नहीं पाते कि इसमें आंसर किस तरह से हमें देना है, क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा टेक्निकल मतलब सब्जेक्ट। नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात को सर? इसमें जो तो कुछ क्वेश्चन आप उठाना जो एग्जाम में आते हैं अक्सर, हम्म आपको तो आइडिया होगा कि ये सब्जेक्ट आपका है, तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं प्रोजेक्ट अप्रेजल, समझ रहे हैं, वो कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस हिसाब से आपको हमें प्रिपेयर कराना पड़ेगा सर। ये तो होता है क्या, नहीं बच्चे फिर लटक जाते हैं सर। आपको आपको जैसे असाइनमेंट दिया गया आईपीआर, है। आपने हमें आईपीआर पढ़ाया था ना सर, आईपीआर आईपीआर में काफी बच्चों को ये आई है, बिकॉज आईपीआर के जो क्वेश्चन आए थे ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे वो हमसे, हाँ हाँ वो हाँ हमसे ऐसा चाह रहे थे जैसे हम उसके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को वैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे, समझ रहे हैं? तो ये वो सब्जेक्ट है सर। नहीं वो सब्जेक्ट तो ठीक है, आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, असाइनमेंट बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। असाइनमेंट नहीं बनाते हैं उसी से बस लड़के, जो लड़के असाइनमेंट नहीं बनाते हैं उसी का जो है बैक आता है, री आता है। हम ये मान ही नहीं सकते कि जो असाइनमेंट कंप्लीट कर ले वो उसको बैक आएगा, री आएगा। जो बच्चे नहीं बना रहे, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए थे, उसी का री आता है, जिनको कि इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हाँ, वो तो है ही सर, पढ़ने वाले तो फिर कर ही देते हैं किसी भी तरह क्लियर करके, अब वो इंग्लिश हाँ, तो जो पास होना बच्चे होता है तो बिल्कुल 35-40 भी नहीं नंबर। असाइनमेंट एकदम एक भी असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं, उन्हीं का री आता है। नहीं तो ये सब्जेक्ट में आपको री आने का चांस नहीं है। ये सब्जेक्ट जी आपका आसान है, और सब चीज एक एक करके उसमें समझा दिया जाता है, एक एक टॉपिक को समझा दिया जाता है, एक 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 टॉपिक को छेड़ छेड़ के समझा दिया जाता है। तो एग्जामिनर कितना भी दूर भागेगा तो वो उसमें 80 to 90% तो सिलेबस से उसका रहता ही है। 10% क्वेश्चन माना जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है। तो लेकिन आप असाइनमेंट कर लेंगे तो आपको कभी फेल नहीं होंगे। असाइनमेंट में सारे डिटेल से उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको असाइनमेंट करवाइए, सबका फिर आपको सबका जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। जी। तो अभी तो सर एक्चुअली री वगैरह के पेपर चल रहे हैं ना सर बच्चों के, तो अभी वहाँ बच्चे बिजी हैं, मेरा भी एक पेपर था, एक दो पेपर, तो मैं भी वो कर रहा हूँ। हाँ हाँ लगता हूँ सर 29 को मेरा एक लास्ट पेपर है, उसके बाद असाइनमेंट में हम करते हैं, दिमाग लगाते हैं सर असाइनमेंट में, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट जरूरी है, असाइनमेंट आप कर लेंगे तो फिर आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा, है बट ना। मैं आपको ये कह रहा था ना सर, कुछ क्वेश्चन भी आप इसके ना डिस्कस कर लेना सर हमसे, मतलब क्या पूछ रहा है वो, हमें क्या लिखना है, इस तरह हाँ से नहीं, थोड़ा। एक तो सिलेबस जैसे है आपका चेंज किया हुआ है, और फर्स्ट टाइम आपको यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस भी आपको दिया गया है। इसके पीछे वही 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 सर। और इसके कोई क्वेश्चन पेपर एक तो अवेलेबल नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले का रहता है ना कि 2 साल कोई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम ले चुका है तो उसके उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहते हैं, उसके सैंपल मिले हुए रहते हैं। वो तो है नहीं, आपका पहली बार आपको वो तो सिलेबस है। इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें पहले जी कभी जी एग्जाम लिया नहीं गया है। अब क्वेश्चन सेटर वो कहाँ से रखेंगे, ये इसी में उसमें दिक्कत आती है ना। ऐसे जी जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये में तो पूरे आपको, साल ही रहेगा सर हमारे। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। प्रोजेक्ट अप्राइजल भी आपको काफी क्लियर करके एक एक चीज जो है आपको बताया गया है। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी जितने भी उसमें उसमें मॉडल्स अवेलेबल हैं, सभी को जो है डिटेल से आपको आपको क्लियर करके बताया गया है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, पूरा टॉपिक जो है ना, वो आपको क्लियर करके आपको 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 बताया गया है। यहाँ पर एएसपी भी जो बताया गया है ना, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। एएसपी का जो मेथड है आपको काफी आसान तरीके से, ऐसे आसान तरीके में कहीं किताब में आपको मिलेगा नहीं। जो गोल दिया हुआ है, कटरिया दिया हुआ है, सब कटरिया बताया हुआ है, यही आपको एएसपी है। अल्टरनेटिव निकालते हैं, अल्टरनेटिव 2 निकालते हैं, अल्टरनेटिव 3 निकालते हैं, अल्टरनेटिव क्यू निकालते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका जो आपको अवेलेबल है ना, तो वही आपको इसमें आपको बताया गया है ना। जी और इसमें वेटेड मेथड
का आपको तरीका आपको क्लियर आपको बता दिया गया कि वेट से गुना कीजिए, MIJ से गुना कीजिए, ये सिंपल एडिटिव वेटिंग मेथड है। तो इसमें आपको क्लियर सारा जो है ना, कहीं पे आपको डाउट होगा तो आप उसमें कहीं भी आप दोबारा उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ कौन सा टॉपिक पे आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना। तो यूनिट फर्स्ट का भी सारा आपको 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 क्लियर कर दिया गया है। डिफिनेशन, टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड डिसीजंस, ये सारा क्लियर कर दिया गया है। यूनिट 2 में भी जो है पूरा आपको एक एक करके एक एक टॉपिक को समझा दिया गया। यूनिट 3 में भी आपका सारा क्लियर कर दिया गया है। नेटवर्क, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यूनिट बेसिक्स टू तो डीलिंग विद द सिलेबस तो नेटवर्क। कंप्लीट हो गया क्या सर हमारा? सिलेबस तो फिर कंप्लीट करा दिया फिर आपने लगभग सारा ही? हाँ, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब आप ये बताओ कि सर अभी जो हमारे 1 महीने बच्चे हैं तो उसमें आप फिर क्या सोच रहे हो, मतलब कैसे पढ़ाओगे फिर आप? हम आप दोबारा इसको सिलेबस रिवाइज हाँ दोबारा करोगे या फिर रिपीट करेंगे, सिलेबस को रिवाइज रिपीट करेंगे। करोगे ना आप? हाँ, कल से सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे, जहां जहां रह रहा है, जी जो टॉपिक रह रहा है उसको फिर से रिवाइज करेंगे, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए, है ना। जी तो जी। तो मैं ये चाह रहा था सर, जो आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन भेजे हैं ना सर, तो रिवीजन के साथ ना वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। तो उसमें ना थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें ये लिखने का है, ऐसे करके। हाँ, तो असाइनमेंट के नहीं क्वेश्चन के बेसिस पे ही जो आपका फिर उसमें 12 ये नोट्स फायदा हो भी जाएगा असाइनमेंट कि के हमें पता क्वेश्चन पे रहेगा ही कि बनाया असाइनमेंट हुआ है। पहले से। वो जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ना, वो जी सिलेबस के मैचिंग के साथ ही बनाया गया है। सिलेबस में जिस तरह के टॉपिक दिए हुए हैं उसी तरह के टॉपिक, आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन देखा नहीं है, यूनिट वाइज बनाया गया है, यूनिट वाइज सभी को वो डील किया गया है। यूनिट में फर्स्ट में जैसे डिफिनेशंस है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, तो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। यूनिट 2 में भी जो टॉपिक है उसी पे बेस है ना। जो आपके सिलेबस पे ही बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, आपको सिलेबस से हटके जो है वो नहीं है। तो जी जी जी। उसके सिलेबस के बेस्ड ही वो बनाया गया है। यूनिट 6 में जो आपके रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, डीलिंग विद पीपुल एंड बिल्डिंग टीम लीडरशिप, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कमिटमेंट है, वर्क कल्चर है, मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, इनोवेशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, रिव्यू एंड फ्यूचर डायरेक्शंस है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन उस पे दिए गए हैं। सिलेबस पे ही बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं असाइनमेंट में। तो उसको कल से टॉपिक फिर जो है आपको सिलेबस भी दिखा देंगे, आपको असाइनमेंट भी दिखा देते हैं। असाइनमेंट भी दिखाते हैं आपको, असाइनमेंट देखते हैं अभी अभी अगर मिल जाता है तो, नहीं तो सर आपको असाइनमेंट दिखाएंगे। सर हाँ सर बताइए। सुनो। हाँ बताइए। सर 143 पुराना अब लेक्चर 143 का अटेंडेंस बन गया है। 143 का अटेंडेंस आपका सर वो बन गया 10 बजे वाले लेक्चर में आ नहीं पाया था सर, अटेंड नहीं हो पाया था। हाँ, ये रहा आपका असाइनमेंट। देखिए, ये रहा आपका असाइनमेंट। यस सर। डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विद फिगर एक्सप्लेनिंग प्रोजेक्ट फेजेज एंड डिसीजंस। कंप्लीट जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस। मैं कह रहा एचआरएम में हाँ बोलिए शुभम जी। अटेंडेंस में फिर से आपका क्लियर कर दूं कौन कौन आपका प्रेजेंट है, वो आपको क्लियर कर दूं। फैजान जी 1111। मैं कह रहा अटेंडेंस मिल गया शुभम सर। सिंह, हाँ हाँ लग गई 143। आकाश गुज्जर जी 102, फ्रांसू जी 112, निखिल जी 122, सर एचआरएम में पवन 127। हाँ एचआरएम भी लग गया, एचआरएम में भी लग गया, एचआरएम में भी आपका लग गया।
है ना। ये आपका जी। यूनिट 1 का आपको असाइनमेंट है, यूनिट 1 का। यूनिट 2 का असाइनमेंट देख लीजिए आप। जैसा दिखाइए। ये रहा आपका यूनिट 2, गो नोड गो डिसीजन। डिस्क्राइब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट अप्राइजल, डिस्क्राइब मार्केट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, describe social analysis of project, describe ecological analysis of the project, describe financial analysis of the project, describe project selection by pragmatic approach, है ना। describe project selection by the pair wise approach, describe project selection by the MADM approach। आपको क्लियर जो है, आपको सिलेबस वाइज जो है ना आपको दे दिया गया है, उसमें उसमें आपको डिवाइड कर दिया गया है ना। जी। तो इसीलिए असाइनमेंट 3 आपको दे दिया गया है। डिस्क्राइब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन वर्क डाउन स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन रूल ऑफ ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क का रूल और ड्राइंग, रूल फॉर ड्राइंग क्या है वो आपको निकालना है। एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क, एक्सप्लेन बेसिक शेड्यूलिंग विद द नेटवर्क फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, एक्सप्लेन मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। आपको असाइनमेंट 3 बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जी जी जी। और 4 में असाइनमेंट 5 का यूनिट 3 है, 4 में न्यूमेरिकल दिया हुआ है पट सीपीएम का, और 5वां में डिस्क्राइब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट क्रेशिंग, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन प्रोजेक्ट क्रेशिंग, डिस्क्राइब नॉर्मल एंड क्रेश टाइम इन प्रोजेक्ट क्रेशिंग, describe resource leveling in the project analysis, describe project managing risk, describe different type of frauds in the network analysis, describe different types of the time estimates in the network analysis। और ये 6 में आपको दिखाया गया है। describe role of human factors in project, describe with dealing with the people, team building and leadership in project, describe commitment in the project, describe work culture in project, describe motivation in project, describe coordination in project, describe attitude in project, describe innovation in project, describe project completion, review and future direction, है ना। एक एक चीज को, वर्क कल्चर को, मोटिवेशन को, कोऑर्डिनेशन को, इनोवेशन को, एटीट्यूड को, डीलिंग विद द टीम बिल्डिंग, लीडरशिप इन प्रोजेक्ट, रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, ये सारे एक एक करके बताए गए हैं, है ना। सारा आपको क्लियर कर दिया गया, एक एक करके आपको उसमें आपको क्लियर कर दिया गया है। और चौथा जो है उसमें न्यूमेरिकल था, है ना। ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो ये सिलेबस को पूरी तरह निचोड़ करके कवर करता है। हम इसीलिए नोट्स भी देते हैं आपको, बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा, पूरा एक एक करके निकाल के निचोड़ करके जो सिलेबस में दिया हुआ रहता है उसका लेक्चर नोट्स हम रेडी करते हैं, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है ना। यस सर। ये आपको सिलेबस से मैच करके ही बनाया गया है, जो क्वेश्चन बनाया गया है वो सिलेबस से मैच करके ही बनाया गया है। और ये जैसे डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको उसी से क्लास शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विथ फिगर क्या है, प्रोजेक्ट फेजेज एंड डिसीजंस। तो इसी पे आपको यूनिट 1 जो है आपको बताया गया है, इसी पे यूनिट 1 जो है आपको कंप्लीट कराया गया। तो आपको लेक्चर नोट्स रहेगा, असाइनमेंट आपको किया हुआ रहेगा, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर। हाँ बताइए, बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ सर, मेरी ह्यूमन रिसोर्स में 143। हाँ लग